آج آغا صاحب ہم طب نبی میں کیا کریں؟ طب نبی میں آج ہم جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ ہے انار، اور انار کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔ آج اس پر بات کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا۔ کل گفتگو کے دوران ایک جملہ آیا، وہ یہ تھا، میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے گلے کی جو چنٹیں ہیں جو ایسوفیگس کے اوپر لاتی ہیں، اس کے درمیان میں کھانا کھاتے ہوئے کچھ کھانا پھنس سکتا ہے، اس لیے حدیث مبارک میں اس کے لیے منع کیا گیا ہے کہ کھانے کے دوران بات نہ کرو۔ لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے کہ مجھ سے چھوٹے سے ہی لیکن وہ لوگ جو میری اصلاح کے لیے آج بھی موجود ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو میرے لیے سلامت رکھا ہے۔ ایک بزرگ نے، میرے دوست نے میری کل تصحیح کی کہ یہ حدیث پاک نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے بڑوں کا فرمان ہے۔ تو میں اس سلسلے میں معذرت سب سے پہلے چاہتا ہوں کہ ایک غلطی مجھ سے ہو گئی، اور میں اس لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری اصلاح کی۔ آغا صاحب اس میں حدیث پاک یوں ہے کہ اچھی باتیں کیا کرو۔ جی بس تھوڑی سی لفظ کی میرے ساتھ مجھ سے غلطی ہوئی تو اس لیے میں اس کے لیے معذرت کر رہا ہوں۔ اور آغا صاحب آپ سے پتہ اتنا اچھا میسیج گیا کہ جب کہ ہمارے بڑے جب آغا صاحب ہیں، جب وہ بھی کوئی اگر غلطی سی کوئی چیز ہو جائے اور پھر جب اس کی وہ تصحیح کرتے ہیں تو اس کا مطلب اس میں کوئی برائی نہیں، جب بڑے کرتے ہیں تو پھر ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہمیں بھی کر لینی چاہیے، بڑا ہونا چاہیے۔ یہ بات یہ ہے کہ جو نسبت ہم اختیار کر رہے ہیں وہ نسبت اتنی بڑی ہے کہ کہیں چھوٹی سی بھی غلطی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ساری زندگی کی نیکیاں ضائع کر دے۔ بالکل صحیح، بالکل تو اس لیے میں نے معذرت کی، اللہ سے بھی معذرت خواہ ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ لوگوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے غلطی کو معاف کر دے۔ ایسا پھل جس کے سر پہ ہے تاج وہ ہے انار، ایک انار 100 بیمار۔ ایک انار اور بہت سارے اس میں دانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر انار میں ایک دانہ جنت کے اناروں کا ہے، اور یہ انار بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس شخص کو تیزابیت ہو رہی ہو وہ انار کو چھلکوں سمیت کھا لے، چھلکوں سمیت۔ بہت کڑوا ہوتا ہے جی، چھلکے کے درمیان میں جو ایک پرت ہوتی ہے نا، وہ پرت اصل میں بہت زیادہ یوں نکال کے صفائی سے نکال کے پھینکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، تو وہ پرت جو ہے بہت کام کی ہوتی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات جو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ انار کا کام ہمارے جسم میں جو معدے میں تیزابیت پیدا ہوتی ہے اس کو کم کرنا ہے۔ اور تیسری بات جو نئی تحقیق ہے اس کے بارے میں عرض کروں کہ انار کو اسی طرح آپ پانی لیجئے، گرم پانی، اور اس کے اندر آپ اس انار کو ڈال دیجئے بغیر کاٹے؟ جی بغیر کاٹے، اور اسی طرح صحیح۔ جب یہ بوائل ہو کر نرم ہو جائے تو اس کو چھلکوں سمیت ہی اسکویز کر لیجیے، اور اس رس کو اگر کوئی شخص 40 دن پی لے تو اگر کسی مرد کو پروسٹیٹ گلینڈ کا کوئی کینسر ہے وہ بھی اس سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح کے 3 پیشنٹس پشاور میں آج بھی میرے موجود ہیں جنہوں نے صرف اس سے اپنے کینسر کو ٹھیک کیا ہے۔ اچھا، کالر ہمارے ساتھ ہیں، اور جو ہمارے جتنے بھی کالر ہیں آپ طب نبوی کے حوالے سے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے وہ تمام تر دنیاوی مسئلے جن کا آپ شرعی جو ہے وہ کوئی فیصلہ یا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ ابھی ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں پہلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ریاض صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ریاض خان بات کر رہا ہوں، ماڈل کالونی کراچی سے۔ جی ریاض صاحب، ساتھ میں آپ پوسٹل ایڈریس بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک مزاج ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ بلال بھائی ہنس رہے ہیں میرے خیال سے۔ جی وہ کیونکہ میں پہچان کی، وہ میری یادداشت پہ ہنسے۔ اچھا، کیا پوچھنا چاہیں گے ریاض صاحب آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو انار ہے یہ میں اپنی والدہ صاحبہ کے شوگر کی پیشنٹ ہیں، ہے نا، تو یہ اس کا استعمال اچھا ہے والدہ صاحبہ کے لیے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اس کے چھلکے سے ہمیں کیا فوائد ہیں، چھلکے سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ یہ چھوٹے بچوں کو جو ہے کھانے میں کوئی حرج تو نہیں ہے چھوٹے بچوں کا؟ ٹھیک ہے، 3 سوال۔ چھلکا استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں؟ والدہ ڈائبٹیز کی پیشنٹ ہے، ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائبٹیز کے پیشنٹ کے لیے ڈائبٹیز کا کوئی تعلق نہیں، لیکن ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے ایک چھوٹی سی ہدایت ساری زندگی یاد رکھیں، ہمیشہ چھوٹے پورشنز میں کھانا کھائیں اور کم وقفے کے ساتھ کھائیں، اس سے شوگر لیول جو ہے کمپیریٹیولی بہتر ہوتی ہے ہمیشہ۔ بچوں کے لیے بہت اچھا ہے، لے سکتے ہیں، اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے اور مختلف قسم کے ہمارے بہت سارے وائٹامنز اس کے اندر ہوتے ہیں، لہذا بچوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ اگر کھٹا ہے اور بچوں کا گلا خراب ہے تو مسائل بڑھ سکتے ہیں، لہذا اس کو احتیاط کے ساتھ۔ چھلکے کی بات اب بتائیے۔
छिलका बुनियादी तौर पर स्क्वीज़ करने के लिए होता है। खुदा न खास्ता किसी शख्स को पाइल्स की शिकायत हो तो वो इसके जोशानदे से सिर्फ आप दस्त ले ले तो उसकी पाइल्स की तकलीफ़ ठीक हो जाएगी। और अनार का छिलका बहुत सारे अमराज में हमारे यहाँ हाबिसुद्दम के नाम से इस्तेमाल होता है, यानी खून को रोकने वाली दवा। किसी भी ज़रिए से अगर इंसानी जिस्म से खून जारी हो रहा हो तो अनार के छिलके का पाउडर, खुश्क छिलके का पाउडर इस्तेमाल करने से ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ज़बरदस्त। एक और कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदिया जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मजी इमरान बात करूँ इस्लामाबाद से। क्या ठीक है? जी जी बिल्कुल इमरान भाई, रमज़ान मुबारक। क्या पूछना चाहेंगे? मजी मैं पूछ रहा हूँ कि जो ब्लड प्रेशर का मरीज होता है उसके लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा होता है? हाँ, ब्लड प्रेशर के मरीज़ के लिए सबसे अच्छा फ्रूट कौन सा होता है? और मदिया एक और बात, जी जी। अब अफ्तार ट्रांसमिशन में क्यों नहीं आती है मदिया? मैं क्योंकि कुतुब ऑनलाइन 1 घंटा होता है तो हमने कहा कि थोड़ा सा मुझे सोने का टाइम, लास्ट टाइम मैं बहुत बीमार हो गई थी, इस समय मैंने कहा रेस्ट कर लूं। बहुत शुक्रिया। ठीक है मदिया, थैंक यू जी। जनाब, फ्रूट जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो किसी हद तक खरबूजा इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, खरबूजा और आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो अनार के, और मुझे बताएं कि बचपन से ही हमेशा ये सुनते आए हैं, और जैसे अभी आपने बात भी की कि इसका एक दाना जो है वो जन्नत का होता है, इसलिए कभी चाहे इसका दाना ख़राब भी हो वो भी नहीं छोड़ती, वो भी खा जाती हूँ कि पता नहीं शायद ये जन्नत का हो। नहीं, जन्नत का दाना ख़राब नहीं होगा। ये चीज़ ये आपने जो क्लियर किया ना, कि यही डर होता था कि ये ना हो कि नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है, एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन सा आप बात कर रहे हैं? तौकीर बात कर रहा हूँ सियालकोट से। जी तौकीर भाई, रमज़ान मुबारक। क्या पूछना चाहेंगे? जी आगा साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। जी, मैं हाजिर हूँ। तो इनसे पूछना था कि मेरे ना बाल टाइम से पहले सफेद हो चुके हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के बारे में इनसे कुछ पूछ रहा था मैंने। तौकीर भाई, आपको साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं वैसे? नहीं, मुझे ना थोड़ा सा रेशा है चेहरे पे। अच्छा, मैं उसकी इसलिए वजह से हंसा हूँ ना- कि मदीहा जो है वो आधी तबीब बन गई। जी जी। ठीक है। देखिए, बालों का सफ़ेद होना बुनियादी तौर पर बालों की जड़ों में मेलानिन सेल्स की कमी की वजह से होता है, और उन मेलानिन सेल्स को जो सप्लाई ऑफ ब्लड जाती है वहाँ पर अगर रुकावट आ जाए तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं, चाहे वो बुढ़ापे में, वो मेरी जैसी उम्र में बाल सफ़ेद हो जाएं, या अगर जवानी में हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मेलानिन सेल्स को सप्लाई कम हो गई है। 90% केसेस में पाकिस्तान में ये साइनोसाइटिस पुराने नज़ले की वजह से होती है। जिन लोगों को नज़ला अक्सर रहता है उन लोगों के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा था। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मैं नदीम बात कर रहा हूँ कराची से। जी नदीम भाई, रमज़ान मुबारक। क्या पूछना चाहेंगे? खैर मुबारक। मैं हकीम साहब से एक चीज पूछना चाहूंगा कि हकीम साहब बैठते कहाँ पे हैं कराची में? सर, ये MCR से पूछ लें। वैसे मैं कराची में 15 दिन बैठता हूँ, 15 बाकी दिनों में मैं लाहौर और पिंडी और दुबई होता हूँ। जज़ाकल्लाह हकीम। थैंक यू जी नदीम भाई। अच्छा, हम अच्छा, क्या अनार बनाने जा रहे के हैं? लिए तो हम बना रहे हैं, उबालने के लिए रखा है। और अनार का मौसम, सारे मौसमों में अनार तो नहीं होता ना, अनार तो अपने मखसूस मौसम में होता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, लेकिन अनार दाना हमेशा मौजूद होता है। तो हम अनार दाने से अनार के फ़ायदे कैसे हासिल कर सकते हैं, हम ये आज मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने सबसे पहले लेना है अनार दाना। ये तकरीबन 1 से लेकर 1.5 चम्मच मैंने लिया अनार दाना। इसके अंदर इतना ही मैं मिला रहा हूँ सफ़ेद तिल, सेसमे सीड, और इसमें मैं डाल रहा हूँ सफ़ेद ज़ीरा जो कम मिकदार में होगा, जो तकरीबन आधा चमचा होगा। ठीक है। इसके बाद मैंने इसमें डाला नमक। ओके। अब ये मैं अभी इसको पीस लूँगा, ये एक चटनी तैयार हो जाएगी। इस चटनी को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूँ। ये 4 चीज़ें मैंने मिला ली हैं। इसको मैं पीस कर रख सकता हूँ, लेकिन जब मुझे इसको फ्रेश करना हो तो फिर मैं 2 चीज़ें और इजाफा कर दूँ, एक हरी मिर्च और एक पुदीना। इन दोनों का इजाफा कर दूँ तो ये बेहतरीन इस तरह की चटनी बन जाएगी जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और ये हज़म के निज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा। अच्छा, यानी कि आप हाजमे के लिए आपके लिए मैंने उस खट्टे को कम करने के लिए इसमें तिल का इजाफा कर दिया और सफ़ेद ज़ीरा हज़म के निज़ाम को बेहतर करने के लिए। सफ़ेद ज़ीरे की दूसरी खूबी ये है कि वो यूरिनेशन को बेहतर करती है, और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को सिर्फ सफ़ेद ज़ीरे से क्रेटिनिन लेवल कम करते हुए देखा है।
मैंने इसके दो पार्ट्स इसलिए किए कि अगर आप चाहें तो ये हमेशा अपने पास घर में बना करके रख लें, ख़राब नहीं होती। जब फ्रेश करना हो और इनको इस्तेमाल कैसे करना है, खाना कैसे, खाने के साथ, खाने के साथ चटनी, जब चटनी, असल में चटनी का जो तस्वुर है वो ये है कि चटनी इस तरह चाटी जाए कि वो हज़म के निज़ाम को बेहतर करे, और हज़म के निज़ाम के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है हमारा सलाइवा। सलाइवा से ज़्यादा बेहतर दवा तेज़ाबियत के लिए दुनिया में कोई नहीं। जिन लोगों को तेज़ाबियत है उन लोगों की हिस्ट्री आप ले लीजिए, ऐसा लगेगा कि वो लोग खाना बड़ा तेज़ खाते हैं। अगर खाने को आहिस्तगी के साथ अच्छी तरह चबा कर खाया जाए, अपने 32 दांतों का हक अदा किया जाए, तो वो सलाइवा इतना ज़्यादा निवाले में शामिल हो जाएगा कि वो हमारे हज़म के निज़ाम में कभी भी तेज़ाबियत पैदा नहीं होने। वैसे आगा साहब थोड़ी सी नॉन सीरियस बात है, लेकिन सबके पूरे दांत 32 नहीं होते। चलिए 28 सही, मेरे 27 है, कोई बात नहीं। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? गुलजार बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी गुलजार भाई, क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना आगा साहब से ये चाहता हूँ कि मुझे अमूमन बलगम हो जाती है और बहुत ज्यादा रेशा रहता है मुझे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है सर, जिन लोगों को रेशा रहता है और ख़ास तौर से वो लोग जो पोलन एलर्जी या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन एरिया में रहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी दरख्वास्त मैंने पहले भी की थी इसी जगह से खड़े होकर, वो ये कि 1 टेबल स्पून लाहौरी नमक यानी डली वाला नमक, पिंक सॉल्ट, वो लें, 1 गिलास पानी और 15 लौंगे। इन तीनों को बहुत अच्छी तरह बॉईल करें, उसके बाद मलमल के कपड़े से छान लें ताकि कोई इम्प्योरिटी ना हो। उस पानी को वुज़ू की तरह नाक साफ़ करें और गरारे करें, साथ में मिसवाक करके सो जाएं। सिर्फ 40 दिन ये कर लें, इंशाल्लाह ताला इन तमाम चीज़ों से निजात मिल जाएगी। इंशाल्लाह। एक और कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं? जी अरशद बोल रहा हूँ पेशावर से। हकीम साहब से बात करनी। जी जी अरशद भाई, बिल्कुल कीजिए बात। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे। हाँ जी हकीम साहब, मेरा जो है ना मैदे का प्रॉब्लम है और गले की पैदाइशी प्रॉब्लम है जी। ये गला भी मेरा हर वक्त खट्टी मीठी चीजों से भी हो जाता है, गर्दों कबार से भी हो जाता है, हर वक्त गले की प्रॉब्लम है और मैदे की भी है। अनार अभी का अक्सर खट्टा होता है, खाते हैं तो उससे फिर गला सूजिश होता है, फिर सब कुछ तेजाबियत बन के। ठीक है सर जी, 2 बातें आपसे अर्ज करूँ। गला ख़राब होने की 3 वजूहत होती हैं। नंबर 1, आपको साइनोसाइटिस है, पोस्ट नज़ल ड्रिपिंग हो रही है, PND। अगर PND है तो आपका गला ख़राब होगा। अगर मुंह से कोई इन्फेक्शन चला जाएगा तो गला ख़राब होगा। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर आपको मैदे में तेज़ाबियत बढ़ी हुई है तो भी गला ख़राब होगा। लिहाजा इन तीनों चीज़ों को सामने रख करके इलाज कीजिए, तमाम चीज़ें बेहतर होंगी। जो मैंने अभी नमक वाला नुस्खा आपसे अर्ज़ किया है वो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। सही। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस मोहम्मद अली बात कर रही हूँ जी, हैदराबाद से। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी। क्या पूछना चाहेंगी? जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे आगे साहब से मालूम करना है, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है तो। अच्छा देखिए, मेरी अपनी एक सोच है, वो ये कि रमज़ानों में वेट कम नहीं होता। रमज़ानों में आम तौर पे वेट बढ़ता है ख़वातीन का। ज़्यादा बेहतर बात यह है कि रमज़ानों के बाद फिर किसी डाइट प्लान पे अमल कर लीजिए। मेरा डाइट प्लान ज़रा ख़तरनाक सा है। मेरे डाइट प्लान में सुबह जो है वो पराठा है, दोपहर में उबले हुए चावल हैं और रात को 30 ग्राम आटे की रोटी है। दैट्स ऑल। इस दरमियान में 2 खाने और लेने हैं, वो 1 फ्रूट और 1 चाय। तो इस तरह 5 मरतबा खाना खाने से वेट कम होता है और हमेशा के लिए बेहतर होता है, इसलिए कि हम छोटे छोटे वक्फों से खाना खाएं। सही। एक और कॉलर जल्दी से ले लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बात कर रहे हैं? जुहेब बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी जुहेब भाई, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मुझे ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अनार के बारे में। तो ये लोगों ने मुझे बताया था कि नहर में जो है ना अनार खाने से वजन बढ़ता है, तो ये क्या इसका कुछ ये सही है बात या गलत है? और दूसरी चीज ये कि कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ये? अच्छा, आपको वजन बढ़ाना है या वजन कम करना है? इन्होंने बताया, लेकिन शायद इनको वज़न कम करना है। अगर सुबह नहार मुँह अनार लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सुबह नहार मुँह कोई भी चीज़ लेना मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब है तिब्बी एतबार से। हत्ता कि हम तो शायद उस रिसर्च को भी निगेट करते हैं जिसमें ये कहा गया है कि सुबह नहार मुँह उठ करके अगर 4 गिलास पानी पी लो तो पता नहीं कितनी बीमारियाँ ठीक हो जाएंगी। ये बिल्कुल गलत बात है, तिब्बी एतबार से भी गलत है और मजहबी एतबार से भी ये गलत बात है। चलें, ठीक है। आई एम श्योर कि आज के तिब्बे नबी के सेगमेंट से आपने बहुत कुछ सीखा होगा।